Assalamu alaikum students, it's your computer teacher Aisha Ijaz, and today we are going to start our first chapter of the book 9th, and the topic is computer and its evolution. So let us discuss that what is computer. Computer is a French word which is derived from the word compute. Compute का मतलब क्या होता है? आप compute का मतलब होता है to calculate, to change your input into the required output. जैसे हम कहते हैं कि 1 plus 1 is 2. This is to calculate something, to compute something. And means existence of a subject. This means the computer is a device that used to calculate and to produce result. We can define it as that computer is an electronic device that accepts information in the form of digitized data. Now what is digitized data? 0 and 1, and manipulates it for some result based on program or sequence of instructions on how the data is to be processed. Means के कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. वो इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की आप हैं कोई जो आपको काम करवाना है वो आपने जो है वो डेटा आप देते हैं, उसे डेटा इंफॉर्मेशन आप देते हैं, और वो किस फॉर्म में जाता है उसके अंदर जाता है 0 और 1 में. हम डिजिटाइज क्यों कह रहे हैं इसे? हम डिजिटाइज इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. आप पिछली क्लासेस में आपको समझाया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ 2 चीज़ें समझती है, और वो होती है एक ऑन और एक ऑफ. तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिजिटाइज डेटा देता है, उसे मैनिपुलेट करता है. मैनिपुलेट करना, चेंज करना. और किस तरह चेंज करना? अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो कि हम उसे देते हैं, जो हमने उसके अंदर फीड की हुई होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पर उस डेटा को चेंज करता है ताकि हमें एक रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल हो सके. We can also say that computer is a device that take input, process it, and present the output in the desired form. Now, complex computer also includes the mean of storing data. It stores the data for further processing, and storing of data is making a computer capable to perform administration responsibility as an administrator for transferring data from one end to another. This is the fact that now computers are involved in each and every industry. We can say that computers are used in various fields like business, industries, education, banking, transportation, and etc. Now coming to the next point, and that is that evolution of computer. We know that necessity is the mother of invention. हमें किसी भी चीज़ की जब हम ज़रूरत महसूस होती है तो हम उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं. हम बहुत सारे इक्वेशंस आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे कि आप एक ही सवाल को कई इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में. फिज़िक्स में भी बहुत सारी आप क्वेश्चंस को डिफरेंट मैथडोलॉजी से सॉल्व करते हैं. रिज़ल्ट सबका एक जैसा आता है, बट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, यू मेक द थिंग इन एन ईजीएस्ट फॉर्म so that it could be more easy, more faster, and most reliable in sense. So what the duration of evolution of computer depends on its necessity. कि एक वक्त था कि हमारे पास कैलकुलेशंस बहुत कम होती थी, हमारी ज़िंदगियों की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत लिमिटेड थी. जैसे जैसे इंसान ने अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते गए, उनका स्कोप बढ़ता गया, तो हमारी
ज़रूरियात, हमारी कैलकुलेशंस बढ़ती चली गई। एंड फॉर दिस we require a device that can calculate the data more reliably, more fastest method, and with less error. The evolution of a computer depends upon or divided into three eras. One is mechanical era, which we call dark age. Second is electromechanical era, middle age. And the last one is electronic era, which we call modern age. The first era is a mechanical era. Now, first of all, let us discuss that what is mechanical. Mechanical device has parts that move when it is working using power from an engine or any force that make its device इंडिविजुअल पार्ट्स गेट मूव जब आपके उसके डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो किसी फोर्स के ज़रिए मूव करते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू जब वो ऑपरेट हो रहा होता है तो फिर आपको रिज़ल्ट जनरेट करके दे रहा होता है। जब हम मैकेनिकल एरा की बात करते हैं द फर्स्ट डिवाइस इन लिस्ट इज़ अबैकस एंड द टाइम फ्रेम ऑफ अबैकस इज़ 3000 BC। ये मेसोपोटामियंस ने, जिसे हम कहते हैं कि आपका जो ईस्टर्न अपर ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ अर्थ है, जैसे कि चाइना है, ईरान, इस तरफ जो है, हम जो कैलकुलेटेड हैं लोग हैं या जो हिस्ट्री में है, कहा जाता है कि ये यहाँ से इन्वेंट हुआ था और इसके थ्रू आपके पास एक रॉड होती है, एक फ्रेम होता है जिन पे डिफरेंट रॉड्स के अंदर बीड्स जो हैं वो होती हैं जिनके बिहाफ पर आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। इसे हम काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं जिसके थ्रू हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, इन होल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, ओनली two things are involved and that is plus and minus, and combination of these two things make each and every calculations, even your multiplication, your division, your square root, exponents, जितना आप कैलकुलेशन को वास्ट कर दें आपके प्लस और माइनस से ही मिलकर बन रहा होता है। हम आज भी अबैकस को बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में या बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। The next one is Napier bones. The time frame of Napier bones is 1612 AD and its inventor is Scottish mathematician which is John Napier. John Napier developed the Napier bones which is called Napier rods as well. It is a machine that contain 10 rods. अब उन rods के ऊपर जो हैं वो जिन्हें हम bones भी कहते हैं, डिफरेंट मार्किंग हुई भी होती है और उन मार्किंग्स को जब हम एक साथ हिलाते हैं तो फिर आप अपनी बुक में उसकी फिगर भी देख सकते हैं, तो वो कोई एक कैलकुलेटिव रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा होता था। दे आर हैविंग सम कुछ तरीक़ेकार था उनका जिसके ज़रिए वो कैलकुलेशंस करते थे। इसी चीज़ को आगे और ज़्यादा इन्हेंस करके द नेक्स्ट इन्वेंशन इज स्लाइड रूल। एंड स्लाइड रूल का जो आपका टाइम फ्रेम है दैट इज 1622 AD। इन्वेंटर है विलियम ऑथरेट। ही इज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। नाउ व्हाट इज स्लाइड रूल? स्लाइड रूल भी जो है वो दो मूवेबल रॉड्स थी जिनके ऊपर मार्किंग थी डिफरेंट फिगर्स की और इनको हम क्या कहते थे, स्केल्स। उन मार्किंग को, स्टैंडर्ड मार्किंग्स को हम स्केल्स कहते थे और वो जब हम आगे और पीछे करते थे उनको तो वो मैथमेटिकल आपकी परफॉर्म करते थे, टास्क परफॉर्म जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स भी शामिल थी। ये आज भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा होता है लेकिन इसके फीचर थोड़े से और मॉडरेट हो चुके हैं।
नेक्स्ट वन इज पास्कलाइन और पास्कल्स कैलकुलेटर। इसका टाइम फ्रेम है 1642 AD। एन इन्वेंटर है ब्लेस पास्कल विच इज़ अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। नाउ वन थिंग जिसे आप नोटिस कीजिए कि मैक्सिमम जो इन्वेंटर्स हैं दोज आर मैथमेटिशियन। कि दिस मीन्स कि जो हमारी एवोल्यूशन है वो हमारी कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट पे बेस्ड कर रही है। तो ना व्हाट द पास्कलिन हिस्ट्री इज कि पास्कलिन ब्लेस पास्कल ने इस डिवाइस को डेवलप किया था अपने फादर को हेल्प आउट करने के लिए, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। अब इसमें क्या होता था, इट इज़ अ 8 फिगर कैलकुलेटिंग डिवाइस विच इज़ हैविंग 8 व्हील्स। जैसे कि आप कहते हैं ना 10 यूनिट, 10 100 10 100 एंड सो ऑन। तो इसी तरह 8 व्हील्स थे, और जब उसका एक सर्कल, एक व्हील का सर्कल होता था तो वो नेक्स्ट सर्कल को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता था। तो पास्कलिन कैलकुलेटर एक ऐसी इन्वेंशन थी जिसमें आप 8 फिगर्स तक की कैलकुलेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को कर सकते थे, कैलकुलेशन कर सकते थे। नेक्स्ट इज लिबनीज कैलकुलेटर। लिबनीज कैलकुलेटर का जो टाइम फ्रेम है दैट इज 1694 AD। इन्वेंटर है गॉटफ्रिड विल्हेम लिबनीज, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था। ये एक ऐसी डिवाइस थी जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कर सकते थे। इसमें आप इसे हम कह सकते हैं कि एक एडवांस के मिन की तरफ, जिसमें हम अपनी डेटा को बहुत अच्छे तरीके से और परफेक्टली कर सकते हूँ, एवेल्यूएट कर सकते हूँ या कैलकुलेट कर सकते हूँ। तो लिबनीज कैलकुलेटर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी। नेक्स्ट इन्वेंशन है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो है वो 1822 AD में इन्वेंट हुआ, और इसके जो इन्वेंटर हैं दैट इज चार्ल्स बैबेज, which we call father of computer, and he was an English mathematician and a mechanical engineer as well. चार्ल्स बैबेज के बारे में अगर हम यहाँ पे स्किप कर जाएं तो सही नहीं होगा। चार्ल्स बैबेज एक ऐसा इन्वेंटर था जिसने आपके कंप्यूटर की थ्योरी को मोर एडवांस कर दिया। इसके फीचर्स में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि इसने मेमोरी, या आप कह सकते हैं स्टोरेज को जो है वो इन्वेंट करवाया कि किस तरह से हम अपने डिवाइसेस के थ्रू डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ी एक मशीन थी। इट्स अ लार्ज मशीन जो कि एक बड़े पैमाने पर डेवलप की गई थी, और इस पे चार्ल्स बैबेज का एक बहुत बड़ा सरमाया लग गया था। चार्ल्स बैबेज की ये मशीन मैकेनिकली डेटा को स्टोर करने के काबिल थी। इसमें डेटा जो है वो पंच कार्ड के थ्रू होता था। एक इंजन जो है वो बूस्ट करता था इसको, लेकिन इस के बारे में कहा जाता है कि पावर स्टीम की वजह से इसमें कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस होता था। लेकिन ये एक एडवांस कंप्यूटर के लिए एक बेसिक रीढ़ की हड्डी की तरह था, जिसने आज के कंप्यूटर के लिए राहें खोल दी थी। डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बैबेज ने एक और थ्योरी पेश की, एंड दैट इज एनालिटिकल इंजन, जो कि थ्योरी थी 1837 AD पे। लेकिन इसके लिए चार्ल्स बैबेज के पास सरमाया नहीं था, या आप ये कह सकते हैं कि उसके पास ऐसा बैकअप प्लान नहीं था जिसकी बिहाफ पर ये इसे इन्वेंट कर पाता या इसको फिजिकली डेवलप कर पाता। चार्ल्स बैबेज की इस थ्योरी में को अगर हम स्टडी करें तो इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स जो इसने
प्रपोज किया था, ये हमारे आज के एडवांस्ड एरा में इम्प्लीमेंट हो रहा है। हिस्टोरियंस ने इसकी डेवलप के बिहाफ पर ही ये कहा था कि ये एक ऐसा जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बैबेज थ्योरी, जो कि कैपेबल था एक वास्ट एरिया को कवर अप करने के लिए, जिसमें स्टोरेज और प्रोसेसिंग और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को जनरेट किया जा सकता था। नाउ दीज आर द inventions which is in the era of mechanical era. Now in the next era is electromechanical era, where electrical appliances are used to generate the power in the machine. In electromechanical era, we are having only a single invention over here, and that is tabulating machines, whose inventor is Hermann Hollerith. And the era is of time frame इसका 1890 AD था। हर्मन हॉलरिथ जो है वो एक अमेरिकन इन्वेंटर था, जो कि आपके यूएस सेल्सियस को, जिसे आप कहते हैं ना कि कैलकुलेशंस होती हैं आपकी मर्दमशुमारी में के लिए काम आता था। हर्मन हॉलरिथ की इस मशीन से पहले 1980 में जो सेंसस कैलकुलेट किया गया था वो 7 साल में कंप्लीट हुआ था, और इस इन्वेंशन के बाद वही काम 6 महीनों के अंदर विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया था। यही वो वजह थी, दिस वाज द फाइनेस्ट रीजन कि ये आपके यूएस गवर्नमेंट के ऑफिस में यूज़ होने लगा, और ये बहुत फेमस हुआ, जिसने किसी भी कैलकुलेशन को मिनिमम टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने का एक स्कोप जनरेट किया। The next era is electronic era, which we call modern age. Now, when we study a modern age, we categorized it in different generations, where the advancement from vacuum tubes to chips, ICs, and artificial intelligence, इन सारी चीज़ों को हमने डिफरेंट 5 generations में डिवाइड कर रखा है। So the first generation of computer is from 1940 to 1956. Here we are having a technology vacuum tube. Vacuum tube हम इस्तेमाल करते थे, जिसने आपके मशीन की डिफरेंट पार्ट्स को जो हैं वो सेव करने के लिए किसी भी डेटा को यूज़ होता था। आपकी जो इंटरनल मेमोरी थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम, और ये आपकी प्राइमरी इंटरनल मेमोरी कहलाती थी। इस जनरेशन के जो प्राइमरी या आप कह दें जो रिसर्चेस थे, उसमें ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था, और दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर इन्वेंशन थी दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक था। ये एग्जांपल्स थी आपकी फर्स्ट जनरेशन की। सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो सेकंड जनरेशन जो है वो 1956 से 1965 तक था, और इसका जो टेक्नोलॉजी थी जो यूज़ हो रही थी, एंड दैट इज़ ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से आपके जो आपका जो साइज़ था आपके कंप्यूटर का, उसको मिनिमाइज़ किया, उसको और ज़्यादा फास्ट बनाया, चीप बनाया, ताकि किसी भी तरह से आपका डेटा जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। फर्स्ट जनरेशन में एक बात थी कि मैंने आपसे कहा कि हम 0 और 1 पे काम कर रहे होते थे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था।
सेकेंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज इन को यूज़ किया, और एक और लैंग्वेज जैसे जो कि कहलाती है फोट्रॉन, उसे हमने इस्तेमाल किया। इसका जो हमारे पास इंटरनल मेमोरी थी दैट इज़ मैग्नेटिक कोर, जो कि हमारी प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज थी। और इसमें हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, जिसमें सेकंड जनरेशन में हमने बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ किया। जो मोस्ट पॉपुलर हमारे पास कंप्यूटर्स थे इस जनरेशन के, वो IBM 7094 और IBM 1401 थे। थर्ड जनरेशन पे आते हैं। थर्ड जनरेशन में हमने अपने कंप्यूटर के साइजेस को और मिनिमाइज किया। हमने हमारी जो सबसे बड़ी इन्वेंशन जो टेक्नोलॉजी थी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच वी यूजुअली कॉल्ड आईसीज। आईसीज ने हमारे साइजेस को और ज़्यादा हमारे कंप्यूटर के जो साइज़ था उसको और कम कर दिया। हमारी स्पीड बढ़ी, हमारी एफिशिएंसी जो है वो और बढ़ गई। इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम था वो लेस एक्सपेंसिव हो गया, और इसको आप कैसे इसकी मेंटेनेंस भी और ज़्यादा आसान हो गई। यहाँ पर हमने और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लैंग्वेजेस हैं दैट इज़ पास्कल एंड कोबोल। कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स जो हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होने लगे, और टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने इसमें इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं आपको कह चुकी हूँ कि वी विल फर्दर ऑन डिस्कस ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। In this generation, the most popular operators are IBM 360 and IBM 370, which are the popular computers of this generation. In fourth generation, which we called the present generation as well, which is from 1971 to present. In this generation, the most recognized technology is microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर आपको पता है कि हमारे सिस्टम्स जितने भी आजकल इस्तेमाल होते हैं दोज आर हैविंग अ माइक्रोप्रोसेसर which includes ALU, CU, and all the theories which you have already discussed in previous classes. Now, microprocessor has developed more less expensive, faster, and smaller systems. Through microprocessor, the sizes of computer is minimized. The internal storage and semiconductors for internal storage are used. RAM, ROM, magnetic storage, and high level languages are used like C, C++, Java, and many more. These computers are used in almost every field of life. We are using it in every field of life, whether it is education, it's business, medical field, medicines, etc. Now, the last generation, which we usually called artificial intelligence generation, which is from present to beyond, which is the future of our computing devices, wherein we are having self-learning machines. We are going to develop self-learning machines, the reports which can work more efficiently like a human body, where we are introducing robots in different sectors, where industries, in medical fields. In these fields, we are making computers capable to work like a human. अब इंसान के साथ एक ऐसी मशीन को डेवलप करने की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई है जो डिफरेंट ऐसे सेक्टर्स पे काम करे जहाँ पर इंसान की लिए काम करना
थोड़ा सा मुश्किल होता है, या जिसमें डिफेंसिव होना या अपना बचाव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम चाह रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो ऐसी जगहों पर काम करने के कैपेबल हो जाए। रोबोटिक्स में आप लोग अक्सर औक़ात पढ़ते होंगे कि साइंटिस्ट ने बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर ली हैं, जिसमें आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है वो रखी गई है, कि जिसमें आपकी मशीन जो है वो डिफरेंट चीज़ों की कैलकुलेशन करके बिहाफ पर न्यू रिजल्ट्स को जनरेट अपने बिहाफ पर कर सके। इसके डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं जो कि डे बाय डे हमारे सामने आ रहे हैं। सो दीज आर द जनरेशंस। आई होप यू अंडरस्टूड today's lecture. Go for the reading of the book properly, so you may revise the topic properly. We'll inshallah continue our next session. Till then, take care. Best of luck. Allah Hafiz.